ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے کرپشن پرسیپشن انڈیکس سے متعلق 2021 کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کی رینکنگ میں غیر معمولی گراوٹ سامنے آئی ہے، جس سے پاکستان کرپشن میں گزشتہ 10 سالوں کی سب سے خراب پوزیشن میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ صرف ایک سال کے اندر کرپشن کے تاثر سے متعلق پاکستان نے مزید 16 ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور تحریک انصاف کے گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان مجموعی طور پر کرپشن میں 20 ممالک سے آگے نکل گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 2021 کے پرسیپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور پاکستان کو جو سی پی آئی اسکور ملا ہے وہ 100 میں سے صرف 28 ہے، یعنی سی پی آئی اسکورنگ جتنی کم ہوگی اس ملک میں کرپشن کا تاثر اتنا زیادہ تصور کیا جائے گا۔ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کر کے اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف کی حکومت کے صرف گزشتہ ایک سال میں ایک بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ 2020 میں پاکستان کی مجموعی رینکنگ 180 ممالک میں سے 124ویں نمبر پر تھی، اور اب پاکستان 140ویں نمبر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، یعنی اس انڈیکس کے مطابق دنیا کے 41 کرپٹ ترین ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ اسی طرح پاکستان کا سی پی آئی اسکور جو 2020 میں 100 میں سے 31 تھا، وہ 2021 میں 28 پر آ گیا ہے، اور سب سے حیران کن تبدیلی جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ گزشتہ 10 سال کی بدترین کرپشن کی رینکنگ ہے۔ 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں عالمی رینکنگ 174 ممالک میں سے 141ویں نمبر پہ تھی، اور اب پاکستان 180 ممالک کے مقابلے میں 140ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ 2012 میں پاکستان کا سی پی آئی اسکور 27 تھا، یعنی بہت بری اسکورنگ تھی، مگر 2012 کے بعد اس سی پی آئی اسکور میں ہر سال 2 سال میں بہتری دیکھنے میں آئی، مگر تحریک انصاف کی حکومت میں سی پی آئی اسکور بھی گراوٹ کا شکار ہوا۔ 2012 میں پاکستان کا سی پی آئی اسکور 27 تھا، 2013 میں یہ اسکور 28 پر آیا، اور نون لیگ کی حکومت میں 2014 سے لے کر 2018 تک اس اسکور میں بہتری آتے آتے یہ اسکور 33 پر چلا گیا، اور جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو اس کے پہلے سال میں ہی پھر کم ہو کر 32 پر چلا گیا، دوسرے سال یعنی 2020 میں یہ اسکور مزید کم ہو کر 31 پر چلا گیا، اور پھر 2021 میں ایک ساتھ 3 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ پاکستان کا سی پی آئی اسکور اب 28 پر آ گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتے ہی حکومت نے روایتی طور پر ادارے کی ساکھ پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اسکور مالی کرپشن کی وجہ سے نہیں بلکہ رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کی وجہ سے کم ہوا ہے، اور جس ادارے نے پاکستان کی رینکنگ کم کی ہے پاکستان میں اس ادارے کے سربراہ کو چیک کر لیں تو پتہ چل جائے گا۔ پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لا اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے۔ صرف اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے۔ اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے صحافتی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں جو ہی کنٹری کی ملک کی مکمل رپورٹ آئے گی اس کے اوپر ہم ایک مکمل جواب بھی دے دیں گے، لیکن ابھی تک تو چونکہ صرف رول آف لا اور اسٹیٹ کیپچر کی بات ہے تو اس کے اوپر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ صرف ایک رپورٹ میں پاکستان کی رینکنگ میں کمی آئی ہے، اور جو کمی آئی ہے اس کا مالی کرپشن یا بدعنوانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے یہ دونوں باتیں درست نظر نہیں آتی ہیں۔ سی پی آئی نے دنیا بھر میں موجود ممالک کے کرپشن انڈیکس کا تاثر لینے کے لیے مجموعی طور پر 13 سورسز یعنی 13 ذرائع سے ڈیٹا حاصل کیا۔ پاکستان کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 8 ذرائع پر انحصار کیا، اور ان ذرائع میں بی ایس ٹی آئی کی رپورٹ، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک کی رپورٹ، گلوبل انسائٹس بزنس کنڈیشن اینڈ رسک انڈیکیٹرز کی رپورٹ، پی آر ایس گروپ کی رپورٹ، ورلڈ بینک کنٹری پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل اسسمنٹ کی رپورٹ، ورلڈ اکنامک فورم ایگزیکٹو اوپینین سروے رپورٹ، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا رپورٹ اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی کی رپورٹ شامل ہے۔ یہ وہ 8 ذرائع ہیں جس کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان سے متعلق انحصار کیا ہے، اور ان 8 ذرائع میں سے صرف ایک ذرائع میں پاکستان کی رینکنگ میں کمی نہیں آئی ہے جیسا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے، بلکہ پاکستان سے متعلق 3 ذرائع کی رینکنگ میں کمی آئی ہے، جبکہ دیگر 5 ذرائع کی رینکنگ میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے اور ان کا اسکور اپنی جگہ پر برقرار رہا ہے۔ جن 3 ذرائع نے اپنی اسکورنگ میں کمی کی ہے اس میں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک کی رینکنگ سر فہرست ہے، کیونکہ 2020 میں اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو 100 میں سے 37 نمبر دیے تھے، اور اس سال اس اسکور میں کمی کر کے اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے 100 میں سے 20 نمبر دیے ہیں، یعنی ایک سال میں 17 نمبرز کم کر دیے ہیں۔ لیکن صرف اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی اسکورنگ میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ دیگر ذرائع نے بھی اپنی اسکورنگ میں کمی کی ہے۔ اس میں ورلڈ اکنامک فورم ایگزیکٹو اوپینین سروے 2020 اور ورائٹیز آف ڈیموکریسی بھی شامل ہیں۔
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे ने 2020 में पाकिस्तान की स्कोरिंग 100 में से 43 रखी थी और इस साल में कमी करके पाकिस्तान की स्कोरिंग 41 कर दी है, यानी इसमें भी 2 पॉइंट्स की कमी कर दी है। इसी तरह वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने 2020 में पाकिस्तान को 100 में से 22 नंबर दिए थे और इस साल पाकिस्तान 100 में से 20 नंबर ले सका है, यानी इस इदारे ने भी पाकिस्तान की रैंकिंग में 2 पॉइंट्स की कमी कर दी है। तो हुकूमत जो दावा कर रही है कि सिर्फ एक इदारे ने रैंकिंग में कमी की है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी रिपोर्ट से गलत साबित हो रहा है। साथ ही हुकूमत दावा कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की रैंकिंग में जो कमी की है वो स्टेट कैप्चर और रूल ऑफ लॉ की वजह से की है, माली बदउनवानी की वजह से नहीं की है। वैसे तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी भी तहरीक इंसाफ का वादा था और उसमें कमी पर भी हुकूमत फख्र नहीं कर सकती है, परेशानी की बात है और इसका ताल्लुक भी करप्शन से है। और स्टेट कैप्चर भी हुकूमत के लिए कोई फख्र की बात नहीं है और उसका ताल्लुक भी करप्शन से जोड़ा जा सकता है, उसकी वजह से भी करप्शन में इजाफा हो सकता है। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के लिए जिस इदारे ने सबसे ज़्यादा अपनी स्कोरिंग में कमी की है वो इदारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है और जो सवालात पूछे गए हैं वो रूल ऑफ लॉ से सिर्फ मुतालिक नहीं है, माली बदउनवानी से मुतालिक पूछे गए हैं। पाकिस्तान से मुतालिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 8 सवालात ये हैं। पहला सवाल है कि क्या अवामी फंड्स यानी हुकूमती फंड्स के मुख्तस करने के लिए वाज़ेह प्रोसीजर्स और एहतसाब का अमल मौजूद है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हुकूमती फंड्स का वुज़रा और अवामी नुमाइंदों की तरफ से ज़ाती और पार्टी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे खुसूसी फंड्स मौजूद हैं जिनका कोई एहतसाब नहीं होता। चौथा सवाल है कि क्या अवामी मसाइल का अमूमी तौर पर गलत इस्तेमाल होता है। और पाँचवा सवाल है कि क्या मुल्क में कोई पेशा वराना सिविल सर्विस है या बड़ी तादाद में हुक्काम को हुकूमत बराह रास्त तैनात करती है। छठा सवाल है कि क्या कोई आज़ाद इदारा है जो हुकूमती माली मामलात को ऑडिट करता हो। सातवां सवाल है कि मुल्क में क्या आज़ाद अदलिया इख्तियारात के साथ मौजूद है जो वुज़रा और अवामी नुमाइंदों का गलत कामों के लिए ट्रायल करती हो। और आठवां सवाल है कि क्या मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए या फ़ायदा हासिल करने के लिए रिश्वत देने की रिवायत मौजूद है। अब इन 8 सवालों में से बेशतर का ताल्लुक रिश्वत, माली बदउनवानी और माली बदउनवानी के मामले पर हुकूमती चेक एंड बैलेंस से है। इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो सवाल हुए हैं वो ये थे कि मुल्क में ये बात कितनी आम है कि जहां इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, पब्लिक यूटिलिटीज, सालाना टैक्स अदायगियों, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसेस के इजरा और मनपसंद अदालती फैसले हासिल करने के लिए बगैर दस्तावेज जायद रकम की अदायगी या रिश्वत अदा की जाती हो। इसी तरह वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी के सवालात में पब्लिक सेक्टर करप्शन इंडेक्स, एग्जीक्यूटिव करप्शन इंडेक्स, लेजिस्लेटिव करप्शन और जुडिशल करप्शन के इंडिकेटर्स से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार की बात की गई है। मगर हुकूमत इस रिपोर्ट के आने के बाद 2 मुख्तलिफ और गलत दावे कर रही है। पहला दावा ये कर रही है कि सिर्फ एक इदारे ने अपनी रैंकिंग में कमी की, जबकि हमने आपके सामने हकाइक रखे कि एक इदारा नहीं बल्कि 3 इदारों ने अपनी रैंकिंग में कमी की है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रैंकिंग में कमी की है उसका ताल्लुक माली बदउनवानी या करप्शन से नहीं है, जबकि हमने आपके सामने तीनों इदारों के सवालात भी रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेज में डेटा सोर्सेज को सिलेक्ट करने का एक बुनियादी मयार ही रिश्वत, अवाम के पैसे का इस्तेमाल, हुकूमती ओहदे का अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल, हुकूमती ओहदों में एकरबा परवरी और स्टेट कैप्चर शामिल है। और सिर्फ स्टेट कैप्चर ही बाकी सारी करप्शन की वजह भी हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की नायब चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि कानून और रियासत की अदम मौजूदगी पाकिस्तान के कम स्कोर की वजह बनी है। और जब हमने नासरा इकबाल साहिबा को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की तरफ से जारी की गई है। मगर हुकूमत रिवायती तौर पर इस मामले को एक नया रंग दे रही है, इदारे की ही साख पर सवालात उठा रही है। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं है कि हुकूमत ऐसा कर रही है, बल्कि 2021 में जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट सामने आई थी और पाकिस्तान की रैंकिंग 180 ममालिक में से 120 से बढ़कर 124 पर चली गई थी और पाकिस्तान का CPI स्कोर 32 से गिरकर 31 पर चला गया था, तो उस वक्त भी हुकूमती अराकीन ने यह कहकर उस रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि ये हमारे मुतालिक नहीं है बल्कि माजी की हुकूमत से मुतालिक है। यानी रिपोर्ट के दुरुस्त होने पर उस वक्त सवाल नहीं उठाया था, बल्कि ये कह दिया था कि माजी की हुकूमत से मुतालिक। तो अभी आई है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट, ये नून की करप्शन का एक और सबूत है। आप निकाल लीजिए जरा ये किस किस साल की बात कर रही है, और आप ये भी निकाल लीजिए कि 90% उसमें से पब्लिश शुदा मटेरियल है। ये 2015-16 का है और 2017-18 का है। आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत या PTI का नाम आया किसी जगह? आंसर विल बी नो। फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये तो फिर पढ़े गए हैं। ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। उस वक्त भी हुकूमत गलत दावा करती रही कि जो डेटा लिया गया है वो माजी की हुकूमतों का लिया गया है, लेकिन उस वक्त भी हमने आपके सामने अदद-ओ-शुमार रखे थे और साबित किया था कि 2020 की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के दौर से ही मुताल्लिक थी। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जिस डेटा पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन्हिसार किया है
वो 2015 से लेकर 2016 और 2017 से लेकर 2018 तक का है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से इन 8 सोर्सेज में से सिर्फ 2 इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग कम की है। बाकी 6 इदारों की राय में पाकिस्तान की रैंकिंग में ना कोई बेहतरी आई है ना ही कमी। लेकिन जिन 2 इदारों ने पाकिस्तान की रैंकिंग कम की है और कहा है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, उसमें वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी की राय शामिल है। और दोनों का डेटा 2019 का है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की रैंकिंग में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 नंबर्स कम किए और वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 नंबर्स कम किए। इन दोनों इदारों का डेटा किस साल का है देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 13 सोर्सेज में से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के डेटा से मुतालिक लिखा है कि इस इदारे का पहला एडिशन 2010 में शाया हुआ और मौजूदा इंडेक्स को बनाने के लिए डेटा मई 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 के दरमियान एक सर्वे के जरिए लिया गया, जिसमें 4000 से ज़ायद माहिरीन की राय शामिल है, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2019 से लिया गया। जो दूसरा इदारा है जिसका डेटा हासिल करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस नतीजे पर पहुंची कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, इस सोर्स का नाम वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी है। अब जायजा लेते हैं कि क्या इस इदारे ने माजी का डेटा इस्तेमाल किया या तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद का डेटा इस्तेमाल किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में लिखा है कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने 2020 की रिपोर्ट के लिए 179 ममालिक की 2019 में स्कोरिंग की और फिर 2019 का डेटा इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2019 का डेटा इस्तेमाल किया गया है, मगर हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले 1 साल पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब अपनी 2019 की रिपोर्ट शाया की थी तो उस वक्त हुकूमत ने उसे अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। ये रिपोर्ट बाइस्ड है, ये एक मैनेज्ड और टारगेटेड एजेंडा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और हर जगह इनके आलाकार हैं जो इनके स्याकारियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इस किस्म की रिपोर्टें जो हैं वो दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती। इस हुकूमत को उन इंडिकेटर्स के साथ जोड़ के टारगेट ओरिएंटेड प्लान एंड प्लांटेड रिपोर्ट जो है आपने शाया की है, जिस पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। लेकिन माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मुतालिक क्या कहते रहे, क्या बयानियां बनाते रहे, खुद देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपको कैसे चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। इमरान खान माजी में ये भी कहते रहे कि 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म करेंगे और जब तक ऊपर की करप्शन खत्म नहीं होगी नीचे करप्शन होती रहेगी। करप्शन मैं इंशाल्लाह आपको खत्म करके दिखाऊंगा 90 दिनों के अंदर, ऊपर के लेवल की। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। 90 दिन में हम करप्शन, बड़ी करप्शन खत्म करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। इसी पाकिस्तान में मैं इंशाल्लाह आपको जिस दिन पहले दिन ही हुकूमत आएगी, पहले दिन ही बड़ी करप्शन उसी दिन खत्म होगी, बड़ी करप्शन। इमरान खान ये बयाने भी बनाते रहे कि हुक्मरानों की करप्शन की वजह से महंगाई होती है। गरीब अवाम हुक्मरानों की करप्शन और टैक्स की चोरी महंगाई से अदा कर रही है। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं।
اور اب ملک میں مہنگائی ہے اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی ہے تو نون لیگ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف وہی بیانیہ بنا رہی ہے جو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سابقہ حکومتوں کے خلاف بناتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے یہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ کون سا آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ کون سا آدمی ہے جس نے مہنگائی میں اضافہ نہیں کیا؟ آج واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی کرپشن ہے، عمران خان کی کرپشن ہے، اس کی حکومت کی کرپشن ہے، اس کی پارٹی کی کرپشن ہے۔